Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we are studying about our new chapter which is how how do organisms reproduce, which is chapter number 8. Okay dear student, so let we start. Okay, what is reproduction? So let's before to going the what is reproduction, to understand why we need to reproduce. ओके हमें रिप्रोडक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज इट इज़ देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ आंसर्स बिहाइंड ऑफ दिस, बट देयर इज़ समथिंग मोर, जस्ट लाइक कि इट इज़ अ नॉट एजेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये एजेंशियल प्रोसेस जस्ट लाइक एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, ओके एंड रेस्पायरेशंस. बिकॉज अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, रेस्पायरेशन एक्सक्रीशंस वगैरह, तो वी कांट लाइव मोर. ओके, बट इन द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ नॉट सेम लाइक दिस लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस की तरह सेम नहीं होता. अगर हम लोग रिप्रोडक्शंस नहीं भी करते हैं, दैट इज वे देयर इज नो इम्पैक्ट इन अवर लाइफ. ओके, एंड ऑल्सो इन अवर बॉडी. इट इज़ नॉट अ नेसेसरी एंड नॉट अ नीड टू मोर. ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके बिना क्या, इसके विदाउट दिस वी कांट, वी आर लाइफ मोर ऑल्सो. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. ओके, वेस्ट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स it's required lots of energy to do these things. Okay dear student, so why we need to this? Because इस कैंसर मोस्टली टाइम्स हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज we are seeing the another organisms in our surround, that is due to the reproduction. If there is no reproduction, that means we can't see any organisms in our surround. We can't more see humans, see animals and anything in our surround. Okay dear students, and also for that it is for tree, plants, we can't see eat anything, we can't eat any plants. So because they we are seeing and looking at them because only by through the reproduction. ठीक है, if there is not reproduction, that means we can't see, we can't get to anything in our life. Okay dear students, so it is a need for due to the because of the reproductions. Okay, so what is the definition of reproduction? Reproduction की definitions क्या होंगी? So definition of reproduction is, reproduction may be defined as the biological process, it's a biological process and by which organisms give rise to their own kind. ठीक है, जिसकी वजह से जो organisms होते हैं they will rise to their own kind. ठीक है, so this is definition of reproduction. Okay, now our next topic is, do organisms create exact copies themselves of themselves? ठीक है, so now organisms create copies of themselves. Okay, it's making a copies but it look like similar but not identical. क्या होता है, जो organisms जो reproduce करते हैं of any organisms, so they produce a similar copy, not exact identical copy. Okay, and due to this reason of the DNA. ठीक है, ये DNA क्या होता है फिर, which is lies in a cells. cells क्या होते हैं, cells का एक स्ट्रक्चर्स होता है. cells के स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले. this is a structure of cell and inside of cell there is a nucleus, and nucleus के अंदर पे क्या होते हैं आपके chromosomes, and inside of the chromosomes DNA is a lies. ठीक है, DNA क्या होता है, न्यूक्लियस सेल, ये हमने सेल बना लिया. ठीक है, सेल के अंदर में क्या होता है, सेल के अंदर पे न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर में फिर क्या होता है आपका
डीएनए होता है. So here is a written how the new reproduced organisms is how look like. ठीक है, वो कैसे दिखेगा और उसकी जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो कैसे होंगी. जैसे अगर आप ह्यूमन काइंड्स की बोले तो ह्यूमन काइंड्स में जब रिप्रोडक्शंस होते हैं, सो देयर इज अ डीएनए ऑफ द मेल एंड डीएनए ऑफ द वुमेन गैमेट्स. ठीक है, दोनों के जो गैमेट्स होते हैं उनसे मिलकर के जो न्यू डीएनए बनता है, उस डीएनए में क्या होती है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर देयर फॉर देयर इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. ठीक है, मेकिंग प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोटीन्स जस्ट लाइक कि हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है, एक सर है, और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, दिस इज ऑल मेड अप बाय थ्रू द प्रोटीन्स. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स कहाँ पे होते हैं कि हमारे जो रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होंगी, कैसी स्ट्रक्चर्स होंगी, दीज आर ऑल लाइज इन अ डीएनए. सो डीएनए इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द रिप्रोडक्शन. इफ डीएनए इज अल्टर्ड देन आवर बॉडी डिजाइन इज ऑल्सो अल्टर्ड. ठीक है, बॉडी डिजाइन क्या होती है, डीएनए अगर चेंज हो जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स द बॉडी स्ट्रक्चर्स द सम वेरिएशंस इज ऑलवेज देयर. ठीक है, और वैसे तो वेरिएशंस तो सभी में होते हैं. वेरिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वी आर नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक देम. Okay, we are similar that like they have 2 legs, we are also 2 legs. They are have 2 hands, we are also 2 hands. So these are look like similar but not exactly identical. Okay dear students, so at the time we can say that there is a variation because we are not look, our face is different and our natures is different and everything is different as like और पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होते हैं. दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपको डीएनए का फुल फॉर्म भी पढ़ लेना है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे. डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है. क्रोमोसोम्स कहाँ पे होता है, इट इज लाइस इन अ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, इन द सेल. ठीक है, और जो सेल होता है, सेल मीन्स क्या होता है, द गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स मतलब क्या होते हैं वो लोग आगे पढ़ेंगे अभी, तो इसके बारे में अभी आप आगे जानेंगे कि क्या होते हैं ये. तो लेट्स सी. एंड क्या होते हैं कि यहाँ पर जब व्हेन द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो मेन वर्क होता है, इट्स डीएनए कॉपिंग. ठीक है, डीएनए कॉपी का मेन वर्क होता है. सेल्स जो होते हैं दे आर यूज केमिकल रिएक्शंस टू मेक डीएनए कॉपी. जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे कैन क्रिएट कॉपी ऑफ द डीएनए. तो इसके बाद फिर क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ 2 कॉपीज ऑफ डीएनए. इसके वजह से क्या होते हैं, 2 कॉपीज ऑफ डीएनए के क्या होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर्स. ओके, सो 1 कॉपी इज पुशिंग आउट फ्रॉम द डीएनए बट इट इज नॉट वर्क प्रॉपरली बिकॉज they have not any organized structures for maintaining life process. ठीक है, जो डीएनए जो सेल होती है, सेल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं हमारे जो डीएनए को क्या बोलना चाहिए, लाइफ प्रोवाइड करती है. जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, डीएनए के अंदर में फिल्ड होती हैं, विच हैविंग अपैरेटस ऑफ दी डीएनए के अंदर नहीं, सेल के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं. दीज आर ऑल अपैरेटस ऑफ द सेल. ठीक है, सेल में जो हमने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि सेल जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. सेल के लिए भी क्या होती है, उसके लिए भी फूड चाहिए पड़ता है, उसको भी ऑक्सीजन, एंड दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस
ठीक है, इनके अंदर भी क्या होती है, रिप्रोडक्शंस होती हैं। तो इनको जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अपैरेटस विच इज नॉट इन्वॉल्व इन अ कॉपी ऑफ द डीएनए। और ठीक है, जो कॉपी ऑफ दी जो सेल होती है, जो सेल जो जनरेट होती है वहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड सो एट द टाइम व्हेन देयर इज अ डीएनए इज कॉपिंग, ठीक है, सो एट द टाइम देयर इज ऑल्सो कॉपिंग ऑफ द अपैरेटस। जो अपैरेटस होते हैं उनको भी वहाँ पे सेंड किया जाता है, ताकि वो जब डीएनए जो जो सेल होते हैं जब इन अ स्पेसिफिक प्लेस पे पहुँचे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दे नॉट बिकम डाई। ठीक है, वो डाई नहीं होने चाहिए, मरने नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इट विल बी स्टॉप एट द टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो व्हेन द कॉपी ऑफ द डीएनए इज स्टार्टिंग, ठीक है, एंड सो दैट एट द टाइम देयर इज अ नॉट 100% कॉपी ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे जो डीएनए की जो कॉपी होती है वो क्या होती है, 100% नहीं हो पाती हैं। So in the time of copying of the DNA, there is some variation, so that the variation जो होते हैं, ठीक है, variation मतलब क्या होता है कि we are looking like same as like similar as like our parents, but we are there is some different quality in our body also. Okay, so we can say that द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, इसी की वजह से क्या होती है, एवोल्यूशंस होती है इन बाय थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि अवर कि वी आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मोंकी। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, मोंकी थे। तो मोंकी के बाद फिर क्या होते है, ऐसे चेंजेस ऑफ वेरिएशंस के थ्रू ही वी आर बिकम ह्यूमन। ओके, जो एवोल्यूशंस हुए थे, ठीक है, वेरिएशंस ऑफ एवोल्यूशंस, दैट इज वे नाउ वी आर बिकम एज टुडे एज अ ह्यूमन। Okay, and we are moving by through the two legs, we are working by through the two hands because of the variation of evolution. Otherwise you can see that monkeys look like another thing and human is another. So, okay, now let me discuss about the importance of the variations. So what is the importance of the variations? ठीक है, importance of variations क्यों होते हैं, क्या importance है variations का। ठीक है, सो वैसे तो दिस इज यू कैन थिंक दैट बाय योर सेल्फ। ठीक है, वेरिएशंस में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, बिकॉज हम लोग जो न्यू जनरेशन्स होती हैं वो कुछ ना कुछ क्या होती है, उनमें कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, दे आर मच ग्रेटर देन देयर अर्लियर पेरेंट्स। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ उनमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। सो डैट इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इज डैट if our father is not like for not have the ability to study, but we can now studying, ठीक है, and our next generation is also is much great mind of thinking because they are our next generation. Okay, so that is where generation to generation variation is changes. ठीक है, and variation is the kind of the sign of the development of the populations, and if there is not variations, that means we are looking like as earlier and we are never develop ourselves at anywhere and anywhere. Okay dear student, so these to be think as a double importance of the variations. ठीक है, अगर variations नहीं होंगे तो हम लोग क्या है, जैसे पहले जैसे हम लोग मोंकी थे तो आज भी मोंकी ही होते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नॉट वेरिएशन वी कैन नॉट ग्रो मोर एंड वी हैव नॉट डेवलप्ड एंड वी आर नॉट डेवलप आवर थिंकिंग एबिलिटीज एंड एनी थिंग्स। ओके, मतलब हम लोग की बॉडी में जो अल्टर्ड होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द वेरिएशंस एंड नथिंग। ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताया गया है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीज डे बाय डे। ठीक है, सो दैट आवर न्यू जनरेशन विल बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दिस।
ठीक है। जो न्यू जनरेशन होगी वो क्या होगी, उनके अंदर एक एबिलिटीज होगी कि वो हाई टेम्परेचर्स में भी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो एक्चुअली देयर इज अ टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन that is known as first one is a sexual mode of reproduction, okay, and second one is the sexual mode of reproduction. So first we understand about the मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि हियर इज ओनली अ वन बॉडी इज रिक्वायर्ड, ओके, एंड देयर इज अ reproduction process is completed. Okay dear student, so let's see about this how different organisms actually reproduce. ठीक है, कि जो different जो organisms होते हैं they have different mechanism of the reproduction. So in a different just like in a single cell organisms, in a unicellular organisms, ठीक है, they have different mechanism of the reproduction. Somewhere there is a requirement of the two body, that is known as sexual reproduction, and somewhere there is only a one body is required to reproduce their organisms. So let's see first fission. And it is also we can say that the modes by which various organisms reproduce, it depends on the body design of the organisms. ठीक है, जो body design होती है organisms की, उसके according they perform according to this they perform their reproductions mechanism. Okay dear students, so first we discuss about fission. ठीक है, fission किस में होते हैं, fission मतलब क्या हो रहा है कि बाय थ्रू अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर्स बोलते हैं, ठीक है, यूनिसेल्युलर सेल्स आल्सो बोले जाते हैं इनको, ठीक है, दे परफॉर्म सेल डिवीजन और फिजन। मतलब क्या होता है, सेल्स को डिवाइड करके अनदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन और द फिजन. So cell division or fission is performed by many bacteria, protozoa, amoeba. ये सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे हैव परफॉर्म सिंगल क्या बोलना चाहिए सेल डिवीजन ऑफ फिजन. ओके, तो यू कैन सी दैट इन in figure 8.1 we can say that here is a one structure of amoeba. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अमीबा का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इन विच वी कैन सी डेट फर्स्ट द सेल्स आर डिवाइडेड. जो सेल था वो बीच से क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया इन द सेकेंड वीडियो. ठीक है, तो इन द सेकेंड पिक and in this we can see that these cells are totally separated and after that यहाँ पर क्या हो रहा है कि they are separated in a two form of the amoeba and finally they are wholly separated from their parental. Okay dear students, so this is a binary fission in amoeba. Binary fission, binary का मतलब क्या होता है, टू. ओके डियर स्टूडेंट, सो बाइनरी का मतलब टू होता है. ओके, सो इन अमीबा ऑर्गेनिज्म सच लाइक अमीबा हम लोग बोल सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. एनी प्लेन का मतलब क्या होता है कि जो अमीबा होती है, जो न्यू अमीबा बनेगा, ठीक है, वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है. ठीक है, कहीं से भी वो डिफरेंट पार्ट्स में बन सकते हैं. जस्ट लाइक हियर टू अमीबा इज देयर, वन अमीबा, जो अमीबा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से कट के दूसरा पार्ट बन गया यहाँ पे दो सेल्स में. हो सकता है कभी जो अमीबा है वो यहाँ से कट के दो पार्ट्स में बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड एनी प्लेन. ओके डियर स्टूडेंट्स, बट इट इज नॉट इन सम नॉट इन ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जस्ट लाइक की लिस्मानिया. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, काला अजहर नाम की एक बीमारी होती है. सो ये जो लिस्मानिया होता है, ठीक है, it is dividing their cells in two parts but it is also applying it is also done binary fission. Okay, but it is divided not from the any plane. Okay dear students, it is divided
you can see that in a first peak here, in a first peak there is a single Leishman here, ठीक है. In a second peak there is a chemical reaction involved, and in a third peak there is a separation, process of the separation of the सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं न्यूक्लियस यहाँ पे. एंड इन अ सेकेंड देयर इज सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड देयर इज अ बॉडी डिवाइडिंग, ठीक है. जो बॉडी हो रही है वो क्या हो रही है, नीचे से डिवाइड होते जा रहे हैं. एंड देयर अनदर लिस्मानिया इज प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज नॉट टू बी सेड एज अ दिस विल बी अ डिवाइडिंग बाय थ्रू द एनी प्लेन. इट इज डिवाइडिंग बाय थ्रू द स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो ये ऐसा नहीं है कि ये अमीबा की तरह किसी भी प्लेन से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. दे विल बी सेपरेटेड बाय थ्रू एनी स्पेसिफिक प्लेस, एंड दिस थिंग विल बी हैपन इन मैनी organisms, just like in malarial cell. Now here given the figure number 8.2, multiple fission in plasmodium. Plasmodium क्या होता है, plasmodium is a मलेरियल पैरासाइट्स, ठीक है. मलेरियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो मलेरिया जो होती है, ठीक है, हमारे बॉडीज में. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम. इट इज ऑल्सो इट इज डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन्स, ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले जो हमने देखा था पार्ट में, वहाँ पे एक बॉडी से दो बन रहे थे, ठीक है. बट हियर फ्रॉम द वन बॉडी देयर इज अ साइमल्टेनियसली मैनी डॉटर, ठीक है, बाय मल्टीपल फिजन्स. मल्टीपल फिजन्स होते हैं बाय थ्रू द सिंगल टाइम. Okay, now fragmentation. Okay, so what is fragmentation? Fragment means that the body parts will be divided in fragmentation. मतलब क्या हो रहा है, बॉडी को जो हो रहा है एक पार्ट से वो दूसरे 2-3 पार्ट्स बन जाते हैं, या जितने भी पार्ट्स होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं. देन दे कैन रिप्रोड्यूस देयर सेल्स. सो दिस थिंग्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज डन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज स्पायरोगैरा, विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. ओके, दिस इज अ फ्रेश वाटर एल्गाई. एल्गाई का फॉर्मेशन होता है स्पायरोगैरा, एंड इट इज मल्टी सेल्यूलर, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि ये मल्टी सेल्यूलर है. और इट इज अप्लाई इट इज गेटिंग अ सिंपल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो इन मोस्टली इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ नॉट the multicellular organisms not adopted a simple way of reproduction. There is a very complex way of in production is used because of many multicellular organisms जो होते हैं, ठीक है. Because in a multicellular organisms there is a टिश्यू cells are organized, ठीक है, cells, and cells के बाद tissues बनते हैं. tissues से फिर क्या होते हैं वो they become organs. Okay, that is way, and after that they situated in a specific part of the body. So it is not a simple way of to think simple way. So this is not done by through the simple way of reproduction. So, okay, because there is not only cell, there is a cell after that there is tissue, and tissue after that there is a organs, and organs situated in a different body of the different part of the body. Okay, so Spirogyra used a simple way of reproduction in which क्या होता है कि ये जो सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ठीक है. जब ये मैच्योर होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने बॉडीज को सिंपल पार्ट्स में करके ये क्या कर लेते हैं, वहाँ से दे कैन ग्रो इन अ डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. अपने पार्ट्स को, अपने सिंपल पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में, अपने सिंपल बॉडीज को वो क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में फ्रैगमेंट कर लेते हैं. और ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स होता है वो फिर क्या करते हैं, न्यू बॉडी जनरेट डेवलप कर लेते हैं, और वो न्यू स्पायरोगैरा बन जाता है, ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टायरोगैरा
Spirogyra is on your screen. This is a structure of Spirogyra, and you can see here this is a fragmentation part of Spirogyra. ठीक है, ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेकिंग पार्ट यहाँ पे, जब ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर मतलब कि क्या होते हैं, जब एक टाइम होता है जब ये बड़े हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद ही फिर ये क्या करते हैं, अपने बॉडीज़ को फ्रैगमेंट कर लेते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ रीजनरेशन. ठीक है, तो रीजनरेशन क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन. सो रीजनरेशन इज परफॉर्म्ड इन एनिमल ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट प्लानेरिया एंड हाइड्रा. ठीक है, ये जो ऐसे टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन परफॉर्म रीजनरेशन रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होते हैं, the organisms have the ability to give rise a new individual organism from their body parts. ठीक है, जब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही न्यू जनरेशन्स परफॉर्म हो जाते हैं. बॉडी पार्ट्स मतलब क्या होता है, जब बॉडी एक ही बॉडी होती है, उस बॉडी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं फ्रॉम द मीट और एनीवेयर. सो इन द रीजनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे कैन ब्रोकन और कट their body from the in a many pieces. Okay, and after that these many pieces are grow into separate individuals. Okay dear student, but there is a, just like you can see that here is a figure 8.3 regeneration of planaria. ठीक है, so this is a example. Okay, so you can see that here is a one planaria which is broken at or cutting in three parts. Okay, and these three parts will develop new body. ठीक है, so this is example of the new regeneration. Now budding is performed in organisms such as hydra. ठीक है, hydra में क्या होता है, you can see that here is a one mature hydra. ठीक है, and when they become mature they producing a bud. ठीक है, ये क्या करते हैं, bud by through the continuous outgrowth of the cell division. ठीक है, आउटग्रोथ सेल डिवीजन जो होता है उसके थ्रू दे प्रोड्यूसिंग बर्ड्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस बर्ड्स इज प्रोड्यूस अ न्यू बॉडी, एंड आफ्टर दैट व्हेन दिस बिकम मेच्योर सो दैट इट विल बी बिकम एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर्स है, दिस इज अ स्ट्रक्चर्स ऑफ बर्डिंग इन अ हाइड्रा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं, इन विच द पार्ट्स लाइक द इन वेजिटेशंस जस्ट लाइक ट्रीज, प्लांट्स एंड मैनी अदर वेजिटेशंस. ठीक है, दे कैन इन द पार्ट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन. एक अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर जो उनके रूट्स होती हैं, वेजिटेशंस के स्टेम्स एंड लीव्स. ठीक है, इनमें क्या होते हैं, न्यू प्लांट जो होते हैं वो जनरेट हो जाती हैं, बन जाते, न्यू प्लांट्स आर मेड. ठीक है, सो दिस इज आर अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस. सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड यूज्ड इन लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. ठीक है, लेयरिंग ऑफ ग्राफ्टिंग आपको पता होगा कि एक जस्ट लाइक एनी प्लांट्स इज देयर. ठीक है, कोई प्लांट्स है ऐसे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को बीट से कट करके उस प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स के साथ अटैच कर देते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ये प्लेसेस होती हैं दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग. ओके डियर स्टूडेंट, दिस थिंग इज आल्सो डन इन सीड्स. They can reproduce their self in another plants. प्लांट्स ऑफ बनाना. ठीक है, जो प्लांट्स ऑफ बनाना की जो स्टेम्स होती है उसके थ्रू लोग न्यू जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ
sexual reproduction. Okay, so what is sexual reproduction? First see definition of sexual reproduction. ठीक है, sexual reproduction is modes of reproduction that depends on the involvement of two individuals before a new generation can be created. ठीक है, न्यू जनरेशन क्रिएट होने से पहले दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं क्या, डिपेंडमेंट इन इन्वॉल्वमेंट, ओके, ऑफ द सेक्सुअल प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो वी नो दैट बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस अ कॉल्स. ठीक है, जो बुल होते हैं वो अकेले अपने बच्चे को पैदा नहीं दे सकते. एंड हैन और हैंस, ठीक है, नहीं हैंस, मुर्गियाँ न्यू चिक्स जनरेट कर सकती हैं. ठीक है, सो तो इन सच केसेस, इन सभी में क्या होती है, देयर इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ओके, फॉर प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन. सो लेट्स सी व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. Okay dear student, so we know that in a asexual reproduction of process, ठीक है, asexual reproduction of process में क्या होता था, there is only involvement of the only one kind of cells. ठीक है, एक ही सेल्स होते थे वहाँ पे. डीएनए कॉपिंग, ओके, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हैज नोटेड. ठीक है, इट विल बी कैन नॉट एक्यूरेट. ठीक है, वो क्या होता था, वो एक्यूरेट नहीं होता था. बट दिस नॉट एक्यूरेसी इज गुड फॉर द स्पेसिस विच क्रिएटेड अ न्यू स्पेसिस ऑफ द काइंड. ठीक है, न्यू स्पेसिस क्या करते थे वहाँ पे, वो क्रिएट करते थे. एंड वेरिएशन इज आल्सो गुड फॉर द सर्वाइविंग इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिस. ठीक है, ये भी, इसके लिए भी ये क्या इंपॉर्टेंट है. सो दिस डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म is less accurate when there is a one individuals. Okay dear students, so that we think that after some time, if there is a two individuals involvement in this process, so that there is a two different individuals are there. Okay dear students, after that पहले असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते थे उसमें क्या होते थे, एक ही इंडिविजुअल्स होता था, उसी की डीएनए कॉपीज होती थी. ओके, सो वहां पर फिर क्या होते थे, देयर इज अ लेस वेरिएशंस. बट इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज अ two individuals are required, just one, first is male, second one is woman. Okay dear students, when these two individuals are meeting and ये क्या करते थे, मीट करने के बाद मीटिंग एंड दे इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू बेबी. ओके, सो डेट देयर इज अ मोर वेरिएशंस. इससे क्या होते थे, यहाँ पे एक्चुअली टोटल 46 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन अ मेल, ओके, एंड इन अ वुमेन टोटल 46 कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो ये जो 46 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे विल बी डिवाइडेड 23 फ्रॉम द साइड एंड 23 फ्रॉम द वुमेन साइड एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू बेबी विच इज अ 46 स्पेसीज. सो देयर इज अ वेरिएशंस इज डबल. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम द मेल एंड हाफ ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम द वुमेन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अंडरस्टैंड समथिंग मोर. सो वाई वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, एंड न्यू स्पेसिस विल बी अ मोर एक्यूरेट, ओके, एंड मोर good for the reason. So here this thing is done by through the gametes and it is also called, इसको एक और नाम से बोला जाता है which is the germ cells. ठीक है, germ cells क्या होते हैं ये आपको अभी पता चलेगा. So germ cell, ठीक है, I am talking about the germ cells. So germ cells is the cells, ठीक है, actually in a when in a sexual
reproduction, there is a two individuals are required, ठीक है. So in a two individuals there is a specific part, okay, that they produce a cells which is a more DNA और more chromosomes as comparison to the another part of the cell, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होते थे कि पहले जो स्पेशलाइज्ड जो पहले के टाइम पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते थे इन विच देयर इज ओनली अ one individuals and having a less variations, okay, and no any specific part by through they produce a cells, ठीक है. but in a sexual reproduction there is a specific part to produce germ cells, ठीक है. germ cells को produce करने के लिए एक specific parts होते हैं in a both in a male gametes, in a male and in a female, okay dear students. So in which male producing a male gametes and a woman producing a male gametes, okay, male gametes produce करते हैं and female producing a female gametes, okay dear students. male gametes is a lineages cell, ठीक है. ये क्या होते हैं, lineages cell होते हैं. इसका रीजन क्या होता है, because they movable male gametes and female gametes having store a food, ठीक है. ये क्या होते हैं, ये movables होते हैं and these the female gametes having a storing of food, ठीक है. इसमें क्या होता है, food stores होता है. so that क्या होता है, when male gametes enters in the female gamete entering in the female body parts, okay, and mating with the female gametes, so that at the time there is a requirement of the energy, ठीक है. मेल गैमेट्स का खुद का भी फूड होता है, ठीक है. फूड की एनर्जी होती है, खुद की एनर्जी भी होती है मेल गैमेट्स में. बट इन अ फीमेल गैमेट्स देयर इज अ स्टोर्स ऑफ द फूड, स्टोर्स ऑफ द प्लेसेस, ठीक है. तो ये प्लेसेस भी होती हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, द मेल गैमेट्स विल बी swim inside of the body and reached here and make and mating with the female gametes, and there is a chemical reactions between them and they produce a zygote, okay dear students. so zygote क्या करते हैं, zygote यहाँ से डेवलपमेंट हो जाती है and after that after day by day in a both in a plants and in also in a animals and space animal species, ठीक है, both having a zygote and this zygote will be grow after and after time having a specific characteristics, half of from mother and half of from father, okay dear student. so this is a need why we sexual mode of reproduction is required. So let we understand specifically about the sexual production in flowering plants, okay dear students. okay, now sexual reproductions in a flowering plants, okay. so flowering plants में sexual reproductions कैसे होते हैं, for that there is a reproductive parts of angiosperms, ठीक है. इनमें क्या होते हैं, जो इनके जो स्पर्म्स होते हैं that is called angiosperms, ठीक है, which is located in flower में होते हैं. तो यहाँ पर क्या होते हैं, some flowers having a यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है. यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही पार्ट्स होती हैं. दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, जस्ट लाइक एग्जांपल पपाया एंड वाटरमेलन के जो फ्रूट्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल. एंड सम आर बाइसेक्सुअल, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट होती है इन दिस, ठीक है. सो हियर इज अ वन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इज आल्सो हियर, ठीक है, जस्ट लाइक हिबिस्कस, मस्टर्ड फ्लावर, ठीक है. दे हैव बोथ, दे आर कॉल्ड, दे आर डिफरेंट, दे हैव अ फ्लावर which is having a different parts for their reproduction, okay. so in a flower mostly there is a figure
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बना हुआ है, ये टोटल लॉन्गिट्यूडनल फिगर 8.7 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, ठीक है। सो ये फ्लावर जब आपको यहाँ पे दो हो सकते हैं, दो चीज़ें, ठीक है। पहला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड सेकेंड वन इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। दोनों ही टाइप से इसमें पूछा गया है। तो ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ, ठीक है, ये इस इनसाइड ऑफ द फ्लावर प्लांट्स की यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के जो नेम्स है फिगर 8.7 एंड 8.8, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे वो आपको वहाँ पे बनाने हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो इन द फ्लावरिंग फ्लावर्स देयर इज अ 4 पार्ट्स, ओके। जस्ट वन फर्स्ट इज सेपल, पेटल, स्टैमिन एंड पिस्टल, ठीक है। स्टैमिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टिल हैविंग अ 4 पार्ट्स जस्ट लाइक ओवरी, 3 parts, style and stigma, okay dear students, in which the stamen and pistil are the, दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पे, stamen and pistil, they are reproductive parts, ठीक है। यही क्या होते हैं यहाँ पे, दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड पीटल्स, पीटल्स का क्या काम है यहाँ पे, पीटल अट्रैक्ट्स, इट्स अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू कम हियर, ठीक है। एंड वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट करने के लिए होता है। एंड सीपल इज द प्रोटेक्टिव पार्ट विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द अर्ली टाइम, ठीक है। जो फ्लावर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं अर्ली टाइम में। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं इन अवर प्रोसेस। सो इन देयर इज अ स्टामिन, स्टामिन एंड पिस्टिल, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ ओवरी एंड इनसाइड ऑफ दिस देयर इज अ ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल है इनसाइड पे इसके। स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड स्टामिन इज अ एंड पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो स्टामिन में क्या होता है, देयर इज अ पॉलन ग्रेन विच इज अ येलोइश इन कलर, ठीक है। ये कौन से कलर में होते हैं, येलोइश इन कलर्स में होते हैं। दे कंटेन अ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर जर्म सेल्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जो जर्म सेल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, in the these are called pollen grains, okay dear students। and there is a 2 parts, anther and filament, and pistil having 3 parts, stigma, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। स्टाइल, ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है जो यहाँ तक की जाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टाइल। एंड ओवरी, इनसाइड ऑफ दिस ओवरी। तो लेट वी अंडरस्टैंड दिस बाय थ्रू द आवर फिगर 8.8, हाउ दिस इज वर्क, ठीक है, हाउ द फंक्शन ऑफ फीमेल फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो हियर क्या होते हैं, हियर द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, आपके एंथर में। स्टिग्मा में, स्टैमिन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, दिस पॉलन ग्रेन्स कम एंड स्टिक ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आकर क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। स्टिग्मा में क्या होते हैं, वो रिसीवर होता है, समझ लो एक प्रकार से स्टिग्मा। सो दिस पॉलन ग्रेन्स, हाउ दिस पॉलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर, ठीक है, दिस पॉलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड बाय 2 प्रोसेस, बाय थ्रू फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जब ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, अपने आप से हो जाती हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन सेल्फ पॉलिनेशन। इफ देयर इज अ नीड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्टैमिन बाय थ्रू द सम अदर सोर्सेज जस्ट लाइक वाइंड, वाटर, एनिमल्स, सो दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप
तो दिस pollen grain will be transferred by through the self pollination and cross pollination. Actually this process is known as pollination. Okay, so after that when the receiving of pollen grains, okay, so I hope you understand the pollination. ठीक है, pollinations कैसे होती हैं and how this pollen grains will be transferred to the stigma or female reproductive part pistil from the stamen. ओके, स्टामिन से पिस्टिल में कैसे ट्रांसफर्स होती हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स रिसीव द मेल गैमिट, ओके, मेल या फिर जम्प सेल फ्रॉम द स्टामिन. ठीक है, सो एट द टाइम फ्रॉम द स्टाइल, स्टाइल के थ्रू जो होता है, ठीक है, स्टाइल मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज नोन एज स्टाइल. ठीक है, सो इस स्टाइल्स के थ्रू वो क्या होते हैं, जो मेल गैमेट्स है, ठीक है, वो मेल गैमेट्स है वो इन साइड होती है, अंदर पे जाती है, कहाँ पे, ऑफ दिस प्लेस इन द रिच इन साइड ऑफ द ओवरी. इस पार्ट को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं. ठीक है, और इस पार्ट्स के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल होता है, विच इज़ अ फीमेल गैमेट्स. ठीक है, फीमेल गैमेट्स होती है. और यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जम्प सेल्स ऑफ द, बोल सकते हैं यहाँ पे जम्प सेल ऑफ द फीमेल. And when the male gametes is reaching on this and these are make a new seeds. और फिर ये क्या बना लेते हैं, एक after the some time there is a, मतलब there is a chemical reactions and they make a female, they make a seeds and after some time it will be become a fruit. ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक फ्रूट्स बन जाते हैं बड़े से. और दिस फ्रूट्स विल बी मैच्योर. आफ्टर द मैच्योरेशन देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ ग्राम्स है, कि जो सीड्स होती हैं वहाँ से ये कैसे इन्वेंट हो जाती हैं. सो ये भी आप बना लेंगे, कॉटिलेडन. ठीक है, जो आउटर पार्ट होती है इसको कॉटिलेडन बोलते हैं. एंड जो इनर पार्ट होती है जो इनसाइड ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा. ठीक है, डैट इज नोन एज प्लम्यूल एंड फ्यूचर सूट. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, दिस इज नोन एज फ्यूचर रूट, डैट इज नोन एज रेडिकल. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके एक और नाम हमने पढ़े हुए थे, आप इसको फाइंड आउट करिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस. ठीक है, okay, now our new topic is sexual reproduction in human beings. ठीक है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं. सो ह्यूमन्स यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ह्यूमन कौन सा मोड अप्लाई करते हैं, दे आर यूजेस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड हाउ इज दिस वर्क, दिस इज वर्क. ओके, लेट्स बिगिन विद अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट. ठीक है, जो इससे रिलेटेड नहीं है उनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. जस्ट लाइक कि वी नो डैट व्हेन वी बिकम ओल्डर आवर बॉडी विल बी चेंजेस. ठीक है, हम लोग की बॉडी क्या होने लगती है, चेंजेस होने लगती है. हाइट, वेट, थिंकिंग एबिलिटीज ऑल विल बी इंक्रीज्ड विद द डे टू डे टाइम, विद द इंक्रीमेंट ऑफ आवर एज. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा डे जैसे शरीर जैसे जैसे टाइम ऑफ एज होते जाते, इंक्रीज होते जाते. ठीक है, वी विल बिकम ओल्डर एंड आवर बॉडी विल बी ऑल्सो चेंजेस विद दिस टाइम. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर मिल्क टीथ, ठीक है, दूध के दांत जो होते हैं वो झड़ जाते हैं. एंड न्यू टीथ विल बी कैम इन आवर माउथ. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन अर्ली एज. आफ्टर दैट देयर इज द एज ऑफ द टीनेजर्स. टीनेजर्स जब एज पहुंचते हैं, जस्ट लाइक की एज ऑफ द अबो 10 years. ठीक है, एंड दिस एज विल बी when we reaching on this age, after this age our body slowly become enlarged and weighted, and all these requirement will be fulfilled and this will be become a mature पर्सन. एंड आफ्टर दैट क्या बन जाते हैं हम लोग, मेच्योर पर्सन्स बनते हैं. बट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो, वेरी स्लोनेस. ठीक है, ये काफ़ी स्लोली वर्क होती है यहाँ पे. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन बोथ गर्ल्स एंड
boys. Okay dear students, so there is a lots of changes. Some changes are similar and some changes are not similar. Okay, just like when we talking about the what changes, common changes between the boys and girls. So there is a thick hair growing in new parts of the body such as armpits, genital area between the thighs, ठीक है, thighs के and विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, ठीक है, जो काफी कलर में डार्क कलर होते हैं. एंड थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर इन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन अ डेवलप पिंपल्स, ठीक है, और हमारे गालों में क्या हो जाने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं. एंड इन दिस टाइम वी ऑल्सो कॉन्सियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडीज एंड दोज अदर न्यू वेज, ठीक है, जितने भी यहाँ पे न्यू चीजें होने लग जाती हैं इसके लिए हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं. एंड ऑल्सो फॉर आवर बॉडीज. And some changes taking place that are different in boys and girls. These are the in a girls, ठीक है, girls में the changes having the breast size begins to increase with darkening of the skin of nipples at the tips of the breast, ठीक है. Also girls begin menstruate अराउंड दिस टाइम. जो गर्ल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएट साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड इन अ बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, देयर इज अ थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक, उनकी जाती हैं. सो फर्दर एंड द पेनिस ओकेशनली बिगिंस टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट, ठीक है, जो पेनिस होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, चेंजेस इन साइज एंड इट विल बी इरेक्टेड, ठीक है, इन अ डे ड्रीम्स और एट नाइट. Okay dear students, so when this thing is happened we can say that this is the age of puberty, ठीक है, puberty क्या होने लग जाती है, इसी को puberty बोला जाता है. एंड this time is known as this types of girls and boys, they are adolescences, ठीक है. puberty is the age and adolescence is said to be as a boys and girls both at this time. Okay dear students, now सो पोवर्टी की एज क्या होती है, 10 से 12 इन बोथ गर्ल्स में पोवर्टी जो एज होती है इट विल बी अर्लियर, ठीक है, लिटिल अर्लियर नॉट मोर. एंड इन मेल देयर इज अ आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक 11 to 12 years आफ्टर. ओके, सो दिस विल बी हैपन इन अ पोवर्टीज and they are at the time they are able to reproduce their self, ठीक है, by their self. they are eligible for the, but there is a more maturation is required at the time. Okay, that is where you know that adultness of the age is plus 18. Okay, and also after the puberty of age 10 to 13 years of age, the males and females both become to release their gametes. तो इस समय हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं टू रिलीज देयर गैमेट्स फ्रॉम देयर सेक्सुअल पार्ट्स. लेट वी डिस्कस डायरेक्टली अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम directly. Okay, and male reproductive system. So first we discuss about the male reproductive system, ठीक है. male reproductive system क्या होते हैं आपके, this is a male reproductive system in figure 8.10. human reproductive system is showing there is a many parts, ठीक है, just like scrotum, urethra, penis, prostate glands, bladder, seminal vessel, ureter. ओके, सो यहाँ पे क्या होते हैं, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ दिस, ठीक है. सो हियर इज अ यूरेटर, ठीक है. यूरेटर्स कहाँ से आते हैं, दिस आर केम फ्रॉम द
किडनी के जो वेस्ट ऑफ द मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कमिंग फ्रॉम द यूरेटस एंड स्टोर्ड इन अ ब्लैडर में क्या होते हैं, वो स्टोर्ड हो जाते हैं आकर के। जो यूरिन होती है, ठीक है, इन अ मेल बॉडी, द ह्यूमन द urine is stored in bladder. Okay dear student, and after that it is releasing from the, यहाँ से वो रिलीज होकर के दे आर मूविंग आउटसाइड. ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज बाय थ्रू द यूरेथ्रा. ओके, एंड देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर द दिस वे, ठीक है, यहाँ से आने के लिए, एंड ऑल्सो दिस थिंग्स इज कमिंग फ्रॉम दिस वे. सो व्हाट विल बी दे डू, हियर इज अ स्क्रोटम, ठीक है, दिस इज नोन एज स्क्रोटम पार्ट विच इज लिविंग इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी की क्या होती है, आउटसाइड पे होती है. इसका रीजन होते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म मेल गैमेट्स. ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड मेल गैमेट्स हैविंग अ they required a low temperature as comparison to the body temperature. बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है. अगर ये बॉडी टेम्परेचर से अगर ज़्यादा अगर हो जाते हैं, ठीक है, सो देयर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. ओके डियर, तो यहाँ पे स्पर्म की जो प्रोडक्शन होगी वो नहीं हो पाएंगी. दैट इज वे इट इज सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड देयर इज अ वॉश डिफरेंस. यहाँ पर क्या होता है, एक वॉश डिफरेंस है जो कनेक्टेड है किससे, टेस्टिस से. टेस्टिस में ही क्या होता है, टेस्टिस ही बोल सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है वो द टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इज देयर. फर्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस hormones, testosterone hormones. ठीक है, by through this our body become enlarged, and the development of the puberty is by through the testosterone hormone, ठीक है, which is developed in these places. Okay dear students, and also it produces a मेल गैमेट्स. ठीक है, तो मेल गैमेट्स जब क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सो दीज आर कमिंग फ्रॉम द वॉश डिफरेंस, कमिंग आउट फ्रॉम द वॉश डिफरेंस, एंड वॉश डिफरेंस से आउट हो करके ये कहाँ पे जाते हैं, दे आर रीचिंग ऑन द कॉमन पैसेज. ठीक है, कॉमन पैसेज जहाँ से क्या होती है, यूरिनल पास होती है, और जहाँ से आपकी जो स्पर्म होगा वो भी यहाँ से पास होगा. जो स्पर्म होती है इट इज लाइक थिकी मटेरियल. सो इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं एंड द सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग अ सम थिकनेस लिक्विडिटी ऑन द स्पर्म, एंड आफ्टर दैट सम टाइम they will be coming out from the common passage of the urinal passage. Okay dear student, so this is a male reproductive system. इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लिख सकते हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होता है, देयर इज अ 4 पार्ट्स. ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ओवरी. ओवरी क्या होते हैं, यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं इन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. देयर इज अ यूटेरस. ओके, एंड कार्विक्स एंड वेजाइना. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स सी अबाउट द हाउ दिस थिंग विल बी वर्क. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अभी देखा कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके. नाउ वी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिन. ठीक है, सो व्हेन ओवरी व्हेन गर्ल इज बॉर्न, ठीक है, जब गर्ल बॉर्न होते हैं तो देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स. यहाँ पर क्या होते हैं, एग्स होते हैं आपके, ठीक है, इन बोथ साइड्स. सो दीज एग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू बेबी. ठीक है, न्यू बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल्स कौन होते हैं, दिस एग्स आर रिस्पॉन्सिबल्स, एंड दिस एग्स आर रिलीज्ड 1 एग्स इन एवरी मंथ. ठीक है, 1 मंथ में जो ये एग्स होते हैं बाय थ्रू द ओविडक्ट.
और fallopian tube, they are reaching on the uterus wall. ठीक है, जो एक एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर महीने यहाँ पे एक बार यहाँ से रिलीज होकर के आफ्टर द मेच्योरेशन, ठीक है, मेच्योर होने के बाद दे आर रिलीज्ड हियर एंड रीचिंग ऑन द यूटेरस वॉल, ठीक है, विच इज़ अ थिक वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या, थिक वॉल ऑफ ब्लड्स, यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द बेबी सो दैट दे आर रिलीज्ड इट बाय थ्रू द वेजाइनल पैसेज. ठीक है, वेजाइनल पैसेज के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड्स दे गेटिंग आउट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, इससे बाहर हो जाती हैं. एंड आफ्टर दैट सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएट साइकिल्स इन द गर्ल्स. ठीक है, गर्ल्स में इसी को ही क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएट साइकिल्स बोला गया है. सो आफ्टर दैट we can study. So this in the ovaries, ठीक है, there is a production of eggs also and it is also released हार्मोन्स. ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, इस प्लेस से आपके हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं. तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, विच हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेम एज लाइक मेल्स की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे उसकी जो वर्किंग्स होती है, जो चेंजेस होते हैं ना गर्ल्स. ठीक है, दिस इज बाय थ्रू द दिस हार्मोन्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट वी डिस्कस so the main thing of this female reproductive system. So vagina, from the starting vagina, the sperm, the male gametes is entering on this way. ठीक है, जो male gametes होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर करते हैं इन द दिस प्लेस, और इंटर करने के बाद दे फ्लोटिंग ऑन दिस इनसाइड. ओके, दिस इज द यूटेरस. एंड यूटेरस में यहाँ पे क्या होता है, एट द टाइम in the sexual intercourse, in the ovary of the female there is a producing of the eggs and male gametes. ठीक है, जो आपकी जो फीमेल गैमेट्स, ठीक है, वो कहाँ होती है, ये यहाँ पर आपकी सिचुएटेड होती है. मेल गैमेट जो होता है वो यहाँ पर से जाता है एंड दे विल गेट स्ट्रक टू ईच अदर, और उसके बाद फिर दोनों ही क्या हो जाते हैं, यहाँ से स्ट्रक हो जाते हैं एक दूसरे पे. एंड दे मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन टू ईच अदर एंड दिस इज नोन एज जाइगोट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे विल डेवलप देयर सेल्फ एंड बिकम अ एम्ब्रायो. ठीक है, एम्ब्रायो क्या हो जाते हैं, वो यहाँ पे जब वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट बिकम अ जाइगोट एंड सिचुएटेड ऑन दिस प्लेस. वहाँ पर एक वो क्या बन, एक सेल्स के फॉर्म में होते हैं एंड दे विल बी कंटिन्यूअसली डेवलप विद मंथ एंड मंथ. ठीक है, आपको पता है 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है ऑफ द न्यू बेबी इनसाइड ऑफ द मेल फीमेल. ओके, सो यहाँ पर क्या होते हैं, दे कंटिन्यूअसली डेवलप. सो दिस प्लेस इज नोन एज यूटेरस वॉल. ठीक है, यूटेरस वॉल हैविंग अ थिक लाइनिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, थिक लाइनिंग्स ऑफ ब्लड्स होती हैं कि ये काफ़ी यहाँ पर ब्लड्स जमे होते हैं दोनों साइड्स पे. एंड दीज आर हैविंग अ विली. विली क्या होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने वो वॉलिस्ट बॉडी क्या बोलना चाहिए, लाइव प्रोसेस वाले पार्ट्स में ही पड़े हुए हैं. ठीक है, विली मतलब नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ठीक है, जो यहाँ पे यूटेरस वॉल्स पे होती हैं. व्हेन एम्ब्रायो इज डेवलप्ड, एम्ब्रायो के डेवलप्ड होने के बाद, ठीक है, इट विल बी गेटिंग अ फूड. ठीक है, बाय थ्रू द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज नोन प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा होता है वो भी यहीं पर ही सिचुएटेड होता है. कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ना यूटेरस वॉल. जब यहाँ पे एक बेबी जब डेवलप होने लग जाती, ठीक है, सो फ्रॉम द ब्लड्स ऑफ मदर, ठीक है, इट विल टेक ग्लूकोज
and oxygen, and the waste material is also getting out from द प्लेसेंटा। ठीक है, इसी प्लेस से ही क्या होते हैं, उनको फूड एंड ऑक्सीजन मिलते हैं, एंड इसी प्लेस से क्या होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं विल बी आउट फ्रॉम द ब्लड्स ऑफ द मदर। And the development of child inside of mother's body takes approximately 9 months, and after that the child is born as result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus। ठीक है, यूटेरस की जो वॉल होती है इट्स ओपनिंग इन द वेजाइना। ठीक है, और यहाँ से ये क्या होते हैं, ओपन होकर के द न्यू बेबी विल बी कैम आउट फ्रॉम दिस प्लेस स्टूडेंट्स, एंड न्यू बेबी विल बी बॉर्न। यहाँ पर क्या होते हैं, कभी कभी इन अ फीमेल द यूटेरस वॉल विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, बाय थ्रू द आर्टिफिशियल मेथड एंड बाय थ्रू नेचुरली। ठीक है, कभी कभी कुछ गर्ल्स में क्या होता है कि दे नॉट बिकम मदर ड्यू टू दिस रीजन बिकॉज देयर फॉलोपियन ट्यूब विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, ये फॉलोपियन ट्यूब नेचुरली ब्लॉक्ड होता है तो वो दे आर नॉट बिकम मदर, एंड व्हेन देयर इज सम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आल्सो बाय थ्रू दिस दे block the fallopian tube in the female and they block the wash difference in a male due to the पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल्स प्रोग्राम्स होते हैं तो ये यहाँ से भी इसके थ्रू ही ये किया जाता है। ओके डे स्टूडेंट्स, सो इसके लास्ट पार्ट में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये आप बस देख लेंगे, बाकी अब चैप्टर जो है वो पूरा ओवर हो चुका है। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट टू डिस्कस अबाउट द हेरिडिटी विच इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।